In previous video, we have studied illustration number 4 and 5. When the sacrificing ratio of all partner is given and sacrificing share of all partner is given and new share of new partner is not given, we have to find out on the sacrifice of all two partners. In this video, we are going to solve that kind of illustration in which when old partners sacrifice some share out of their share in favor of new partner is given. Illustration number 6. So let's start. A and B are the partners of a firm sharing P&L in the ratio of 2:1. C is admitted as a new partner from 1st April 2017. A sacrifices 1/12 for his share while B sacrifices 1/6 from his share to C. Determine the sacrificing ratio and the new profit and loss sharing ratio. देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 में क्या डिफरेंस है। इलस्ट्रेशन 5 में बोला था कि ए सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/5 पार्ट जो है उसने सेक्रीफाइस किया है। इलस्ट्रेशन 6 में क्या बोला है, ए सेक्रीफाइसेस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइस दे दिया है। इन इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने क्या किया था, सेक्रीफाइस फाइंड किया था। उसका जो ओल्ड शेयर था उसमें से जो उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें दिया था वो मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड किया। यहाँ पे डायरेक्टली सेक्रीफाइसेस गिवन इन दिस एग्जांपल, सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड सेक्रीफाइस ऑफ बी इज गिवन। कैसे पता चलता है, अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है तो वो ऐसे बोलते हैं कि 1/5 ऑफ हिज शेयर, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला है, 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर में से 1/12 दे दिया ए ने और 1/6 दे दिया बी ने। तो यहाँ पे दोनों का सेक्रीफाइस इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हम फाइंड करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर हम जैसा हमने इलस्ट्रेशन 5 सोल्व किया था, बुक की जो मेथड है वो छोड़ के अगर इलस्ट्रेशन 5 वाली जो मेथड आप अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1, sacrifice of A is 1/12, sacrifice of B is 1/6. Now share of C is equals to sacrifice of A and B. यहाँ पे C का न्यू शेयर नहीं दिया है, we have to find out the new share of new partner on the basis of sacrifices of old partners. C is new share of C is equals to A and B का sacrifice, which is 1/12 और 1/6, 1/12 plus 1/6 is equals to डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 6 into 2 and 1 into 2, 1 plus 2 divided by 12, so we get 3/12 as new share of new partner. This is the new share of C. Are you getting clear? Now next step is for new P&L ratio of all partners including A and B. C का तो हमने फाइंड कर लिया 3/12। अब किसका फाइंड करना है, A and B। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर ऑफ A इज 2:1, टोटल इज 3, so 2/3 and 1/3 ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो A का जो ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस A का सेक्रीफाइस 1/12। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करें तो into 4 into 4, so 4 into 2 8 and 4 into 3 12, so we get 8 minus 1 upon 12 is equals to 7/12. Similarly with B, B is equals to old share of B is 1/3 minus sacrifice of B is 1/6 is equals to 4 minus 2/12। डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल, क्या लेना है डिनोमिनेटर 12, so 3 into 4 1 into 4, 4 6 into 2 1 into 2 2/12। C का तो हमारे पास है 3/12। अब सारे का डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, so we get new P&L ratio 7:2:3। क्लियर?
Next example is illustration number 7. When one partner from old partner remains his old share after the admission of a new partner. In this example, 3 partners are there. One partner is admitted, 4th partner. अब क्या हो गया? 4 partner हो गए. उसमें से old partner जो है अपना शेयर मेंटेन करता है. तो कैसे न्यू रेशियो फाइंड करते हैं? Let's start. A and B, A, B and C are the partners of a firm. Their profit sharing ratio is 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. They admit D as a new partner for 1/6 share. C would remain his original share after B's admission. Calculate new P&L ratio. अब हमें क्या करना है? न्यू P&L ratio को कैलकुलेट करना है. There are already 3 partners in the business firm. Old ratio of these 3 partners, old partners A, B and C is 1/2, 3/10, 1/5. New ratio of new partner D is 1/6. अगर हम इसका ओल्ड रेशियो फाइंड कर लें, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करके रेशियो अगर हम फाइंड करें, वी गेट द रेशियो 5:3:2. एलसीएम लेना है 10. इस तरह से अगर आप रेशियो फाइंड करोगे तो ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर वुड बी 5:3:2. इससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अब सी जो है वो अपना प्रॉफिट मेंटेन रखता है आफ्टर एडमिशन ऑफ डी. तो सपोज प्रॉफिट इज 1. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 में से, प्रॉफिट में से सी का जो शेयर है विच इज 1/5 वो रिमेन सेम, यानी कि उसको बी के एडमिशन के बाद भी उतना ही प्रॉफिट देना है. तो प्रॉफिट में से 1/5 गिवन टू सी प्लस 1/6 गिवन टू डी. जैसा कि मैंने पहले बोला था, न्यू पार्टनर को पहले प्रॉफिट दे देना है, फिर जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर के बीच में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो. तो फर्स्ट 1 जो प्रॉफिट है उसमें से सी का और बी का दोनों का जो शेयर है वो प्लस करके माइनस करना है. 1 में से पहले सी को प्रॉफिट देना है फिर बी को. तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो 1 माइनस, ये प्लस इसलिए किया है क्योंकि एक में से ये दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को मैंने कर दिया है प्लस. तो 1 माइनस 6 प्लस 5/30 क्या दिया है मैंने? एलसीएम 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into 6 6, 5 into 5 and 5 into 6 30. 1 minus 11/30, so we get 19/30 remaining profit which is distributed among all partners in their old profit and sharing ratio. सबसे पहला हमने जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था उसी तरह का सम है, लेकिन यहाँ पे जो सी है ओल्ड पार्टनर एक वो प्रॉफिट अपना क्या रखता है? मेंटेन. अब ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर एंड डी इज न्यू शेयर. सी और डी का न्यू शेयर हमारे पास है, हमें फाइंड करना है ए एंड बी का न्यू शेयर. आफ्टर गिविंग प्रॉफिट टू सी एंड डी वी get profit 19/30, so it is distributed among A and B in their old profit and ratio. Old profit and ratio of A and B is 5:3. The total is 8. So 19/30 into 5/8. B का 19/30 into 3/8 is equals to, अब हमें क्या करना है? 240 है, सबका एलसीएम लेना है. अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 95/240. बी का मिलेगा 57/240. सी का क्या करना है? एलसीएम 240, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 240 आए उस तरह से. सेम 1/6 को एलसीएम लेना है 240. सी का आएगा 48/240 एंड बी 40/240. So new P&L ratio of both partner is 95:57:48:40. सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट जो है पार्टनर्स का उसका रेशियो फाइंड करना है. Thereafter we have to assume profit 1. Thereafter we have given first priority to C and D to distribute profit. After getting remaining profit, it should be distributed among another 2 partners A and B in their old profit sharing ratio, and we get
न्यू P&L रेशियो ऑफ ऑल 4 पार्टनर्स। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व होगा इस वीडियो में, यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। देयर आफ्टर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और राइट डाउन कीजिए इन योर नोटबुक एंड समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।